चलो 36 इलिस्ट्रेशन करते हैं. Photo electrons are liberated by UV light of wavelength 3000 angstrom from metallic surface from which threshold photoelectric threshold is 400 angstrom. Calculate de Broglie's wavelength of electron emitted by maximum kinetic energy. So all of you tell me what is de Broglie's theory? कौन बताएगा? डी ब्रोगली का थियरी क्या है? It's like quantum energy minus kinetic energy, something like that. No. What does de Broglie has explained? Dual nature of electron. Yes, dual nature of electron. और उसका इक्वेशन किया था हम लोग ने, किया था ना? Lambda is equal to h upon m nu, right? Yes. Correct. So dual nature of electron. Electron is a particle and wave. So wave है, इसका मतलब लैम्बडा भी आएगा. क्या है डी ब्रोगलीज का इक्वेशन? लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. सो नाउ ऑल ऑफ यू, अपने को h का वैल्यू पता है बट अपने को mv का वैल्यू नहीं मालूम है. सो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन डेटा. अभी गिवन डेटा में क्या बोला है कि वेवलेंथ जो है वो 300 एंगस्ट्रॉम है एंड थ्रेशोल्ड लैम्बडा नॉट is 4000 angstrom. So kinetic energy is what? हम लोग ने किया था ना, वर्क फंक्शन माइनस energy minus work function, correct na? Yes, Yes, all of miss. you, have we done this in last lecture? So Yes. what is the formula of energy, all of you? hc by lambda. Lambda. हाँ, in terms of, और ये क्या हो जाएगा? लैम्बडा नॉट हो जाएगा, बराबर? Yes, Means miss. lambda not मतलब threshold, right? थ्रेशोल्ड, yes. एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर ना? हाँ, correct. Okay, miss got it. हमने values put किए, right? हाँ. So now you can calculate half mv square Yes. या फिर you can calculate mv square. mv square is 2hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught. You can substitute values, all of you. Yes. h कितना होता है? 6.626 into 10 raised to minus 32. हाँ, और c? 3 into 10 raised to 8. So just substitute करो और मुझे mv square ये वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ. Yes, Nikhil, your answer is correct. So 3.3 into 10 raised to minus 19. ठीक है, अब मुझे ना इसको m square v square करना है. I want to make it m square v square. Means तो हम mass से multiply कर सकते हैं. Okay. So हमें m square मिल जाएगा, right? Yes. बाद में taking square root. और ये भी करने से अच्छा है कि तुम डायरेक्टली v कैलकुलेट कर लो.
है ना? V square will be Oh, wow. 3.3 into 10 raised to minus 10 upon n. क्योंकि मास हाँ, तो पता ही है अपने को, yes. सो V स्क्वायर कितना होता है बताओ? मिस मास का वैल्यू हमने वो लिया ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। हाँ, मास यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना आ रहा है बताओ? निखिल मुझे अलग आ रहा है, 3.3 डिवाइड बाय 1.9, 1.73। मीन 9.1 होगा। हाँ, V स्क्वायर, V स्क्वायर। So V will be 6. 10 raised to 6 miss. 12 ना? Okay, okay. I thought of V. Yes. इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 1.31। Now you can substitute all of you in formula. Lambda is equal to H upon mv. So H is Miss 5.49 into 10 raised to minus 25 कैसे आया? V का वैल्यू पुट करना है ना? सॉरी, मैंने इधर इन लोग का वैल्यू देखा। अपना वैल्यू कितना आया है? 1.7, 1.31, into 10 raised to 6. 1.31 into 10 raised to 6. मिस हाँ, मिस शायद लास्ट स्लाइड में एक मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक है? मिस अगर हम लोग वो जो आपने डिवाइड किया था उसको 9.1 से डिवाइड करेंगे तो 1 में आंसर नहीं आएगा। 0.60 आता है, राइट? हाँ, मिस आप एक मेरी प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो? एक मिनट, मुझे पता नहीं है आंसर अभी। 0.3 में कुछ आएगा। हाँ, मतलब 0.3 आ रहा है। 362, 0.362 आ रहा है। एक मिनट। Miss, I think you have divided 9.1 by 3.3. ये 6 है यहाँ पे, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। मिस बट अगर हम लोग 3.3 को 9.1 से डिवाइड करेंगे तो
0.36 में आंसर आता हाँ मिस, हम्म आपने डिवाइड कैसे इस किया? v स्क्वायर 0.36 कुछ आता है। है। शायद आपने 1.9 लिया उधर 9.1 की जगह। हाँ, कितना आता है? 36. 36। 0.362. Oh, yes. Zero point 6201 into 10 raised to 6. 0.602. Yes. Now we'll substitute अभी Yes. इसमें That's correct. 0.602 into 10 raised to 6. आया। Yes. Okay, all of you. किसका डाउट था ये 36 क्वेश्चन? आयुष ने, आई डोंट नो किसका था। इसमें मेरा 37 था, 36 नहीं था। लेट्स डू 37. Light of wavelength 5000 angstrom fall on metal surface of wave function 1.6 electrovolt. Find the energy of photon and kinetic energy of photon. So all of you, can we calculate energy of photon? Yes, all of you. Ayush, ये कैसे calculate करेंगे? Energy of photon is hc upon lambda. लैम्बडा दिया हुआ है ना? Yes. So तुम्हें hc upon lambda से energy आ जाएगा। इसको फाइंड करके मुझे बताओ तुम्हें करेक्ट आंसर आ रहा है क्या? h का वैल्यू, c का वैल्यू अभी मैंने बताया था तुम्हें, और एंस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? ये कन्वर्जन दिया है ना मैंने एंस्ट्रॉन टू मीटर वाला। 10 raised to minus 10. So do it. मिस 10 रेज टू -9 तो ये नैनोमीटर टू मीटर का होता है ना? -10. हाँ वही -10 होता है। -10 ही बोला था ना सौम्य ने? उसने -9 बोला। -10 बोला. 10 बोला. मैंने भी 10 ही सुना।
Yes, Ayush, are you getting it correct? Energy. It is coming 3.97 into 1 upon 10 raised to 1 upon 10 raised to 19. So Joule. correct है ना वो? Yes. Now what next they are telling you to calculate is the kinetic energy. Kinetic energy. So kinetic energy of photoelectron is what? Half mv square, which is hv minus hv naught. हाँ, so ये हम लोग ने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. हाँ, वो मैं समझ गया. So टोटल एनर्जी तुम्हारा कितना है? H अभी जो मैं आया वो 3.97 into 10 raised to minus 90 joule minus 3.04 into 10 raised to पर 10 वो raised to किधर से आया 3.04 into 10 raised to minus 19 joules? मिस वो वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट हाँ, इलेक्ट्रोवोल्ट को कन्वर्ट करके. हाँ, जूल को ठीक है मल्टीप्लाई. करेक्ट. मिस आंसर आया 9.3 into 10 raised to minus 20 joule. ओके. नेक्स्ट इज 38 क्वेश्चन. 38 में भी डाउट है ना किसी को? यस मुझे. हाँ, लिरॉन को डाउट है. So calculate velocity of electron ejected from platinum surface when radiation of 200 nanometer falls on it. The work function of platinum is 5 electrovolt. So now we have to calculate. यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना? यस. ये Yes. दिया हुआ है वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, बट इसको अपने को जूल्स में कन्वर्ट करना है. They have given us conversion. 1.6 into 10 raised to 19 minus 9. फिर v कैलकुलेट करना है. दिस v is to be calculated. बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम लोग को पता है ना? Yes, 9.1 into 10 raised to minus 31. h पता है. Planck's 28. और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है. क्या दिया है? लैम्बडा दिया है ना? सो इसको तुम लोग किस में कन्वर्ट करोगे? hc अपॉन लैम्बडा. ओके न्यूटन में. दिया ओके समझ गया मिस. c मालूम है ना? यस 3 into 10 raised to 8. एंड लैम्बडा ये नैनोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो. 200 into 10 raised to minus 9. Yes. So now you will substitute all values and you will calculate value of velocity. Yes. चलो फास्ट करके देखो करेक्ट आंसर आ रहा है क्या? डू इट फास्ट.
आ रहा है लेरॉन? मिस 1 मिनट. मिस एनर्जी मिल गया, अब बाद में क्या करना है? क्या क्या? एनर्जी मिल गया, अब बाद में क्या करना है? ये मिला hc/λ मिला. हाँ. Okay. You have to calculate velocity. V calculate करना है ना, तो पहले v square calculate करना पड़ेगा. तो 2 multiply होगा and m divide हो जाएगा. हाँ हाँ, ओके ओके ओके, समझ गया. 36 पे किया था वैसे ही ना? हाँ वैसे ही. ओके ओके मिस, अब समझ गया. चलो नेक्स्ट करें. 39. यस. किसका डाउट है 39? मैम मेरा डाउट है. प्रियांशु. ओके, सो प्रियांशु क्या बोला है? अ सर्टन मेटल्स वाज इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 into 10⁻16. सो ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है? यस प्रियांशु. मिस थ्रेशोल्ड है. नो, तुम्हारा लाइट मेटल पे पास हो रहा है जिसका इतना फ्रीक्वेंसी, मीन्स ये टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, ओके. नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी 4 into 10⁻16. Photo electron emit has 3 times kinetic energy as kinetic energy of photo electrons emitted when metal was irradiated with a light of frequency 2 into 10⁻². ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 35 इफ यू रिमेम्बर. वहां पे ट्वाइस था काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे ट्राइस है. और क्या दिया है यहाँ पे? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अपने को कैलकुलेट करना है. मीन्स क्या कैलकुलेट करना है? न्यू नॉट कैलकुलेट करना है. दैट इज 3 ना. 3 h न्यू काइनेटिक एनर्जी. Yes, Priyanshu, have you understood this? हाँ मिस, तो एच कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में चला जाएगा. हाँ, बट अभी यहाँ पे न्यू नॉट क्या है? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. हाँ, V2 क्या? V2 का वैल्यू कितना होगा? मिस 2.0 into 10⁻60. नो, 2 तुम्हारा मीन्स ये वाला. तो वो क्वेश्चन पढ़ो. अ मेटल वाज irradiated with light of frequency 4 into 10⁻16 and the photo electron emitted has 3 times. मीन्स उस वो लाइट से जो तुम्हारा वो लाइट फॉल होने पे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उसका is 3 times. मीन्स इट इज 2 ना. न्यू नॉट इज न्यू 2 इज इतना. यस करेक्ट. मिस नहीं समझा, आपने समझा. सी तुम्हारा जो लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी 4 into 10⁻16 है,
वो मेटल पे फॉल हो रहा है एंड वो मेटल पे फॉल होने पे काइनेटिक एनर्जी इज 3 times Okay. the kinetic energy of photon which are emitting with frequency of 2 into 10 raised to 16. Yes. Yes, miss. तो V2 तुम्हारा ये हुआ ना 4 into 10 हाँ raised to मिस, V2 16 4 into 10 raised to 16 और V1 कितना रहेगा मिस 2.0 ना 10 raised 2 to into 16. Now you can calculate yes further. miss, I can. निखिल ऐसे नहीं आएगा नॉर्मल इज इक्वल टू 3 into थ्रेशोल्ड, ये नहीं आएगा। थ्रेशोल्ड तो दोनों में भी आएगा ना, तुम्हारा दो डिफरेंट लाइट मेटल पे फॉल हो रहा है। सी यू हैव टू मेटल शीट्स, इधर भी लाइट फॉल हो रहा है, इधर भी लाइट फॉल हो रहा है, ठीक है। अब मेटल सेम है तुम्हारा, बट दो सेम मेटल पे दो डिफरेंट लाइट फॉल हो रहा है, तो ये कितना रहेगा 4 into 10 raised to 16 है एंड दिस इज 2 into 10 raised to 16 एंड इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इसका दिस इज यू टेक इट दिस 2 एंड दिस इज 1, सो दिस 2 is, or you can take it anything, you can take it x, you can take it y. समझा? हाँ हाँ मिस, समझा समझा। चलो फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 4 का डाउट सॉल्विंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 and 6। What is the minimum amount of time required to measure the kinetic energy of electron with a speed of 10 raised to plus or minus 100 में प्लस और माइनस 1 मीटर पर सेकेंड? मिस फर्स्ट, थर्ड और सेवेंथ भी करना ना। हाँ, अभी मुझे जैसे मैसेज आया ना मैं वो सीक्वेंस में जा रही हूँ। तो पहले मुझे जो मैसेज है वो निखिल का है एंड दैट इज 4 and 7। सो सबका मुझे भी डाउट उन्हीं में डाउट है। ठीक है, जिसका लास्ट में अगर किसी का मेरे से रह जाता है तो मुझे बताओ डाउट। अभी ना यहाँ पे ना टाइम बोला है ना कैलकुलेट करने के लिए, और अब तक हम लोग ने जितने भी फॉर्मूला किए किसी में भी टाइम है क्या? टाइम का कैलकुलेशन है क्या? नहीं है ना? नो। सो आज हम लोग एक प्रिंसिपल करेंगे, हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसमें हम लोग टाइम सीखेंगे कैसे फाइंड करना है। ओके, सो यू जस्ट मार्क दिस क्वेश्चन एंड कीप। ओके। Next is 6th question. Photoelectric effect can be expressed in terms of following graph. What is the work function for photoelectric emission of electrons? So अपने को अभी इसको ना थोड़ा rearrange करना पड़ेगा. What is the photoelectric equation? मिस फोर्थ वाला एक बार आपने कैसे किया एक्सप्लेन? फोर्थ वाला मार्क करो अभी समर्थ। ओके मिस। We have not done yet. फोर्थ वाला मीन्स अभी आज हमें हेजनबर्ग सिखाऊंगी।
वर्क फंक्शन को 5 से डिनोट करते हैं. दिस इज अ सिंबल ऑफ 5. रीअरेंज करते हैं इसको. y is equal to mx plus c. सबको पता है क्या ये इक्वेशन? y is equal Yes, miss. to c is a straight line equation. So अगर मैं 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करती हूँ तो मेरा y एक्सिस पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी आएगा. x एक्सिस पे क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी अपॉन h आएगा. यस. इंटरसेप्ट क्या रहेगा? 5 रहेगा ना. दैट इज अ वर्क फंक्शन. एंड स्लोप कितना आएगा? 1. Yes, all of you. Is this clear? Yes. अभी ये Yes, इधर miss. A है और this is O. So OA इन लोग ने कितना बोला है? स्वस्थ वाला भी करा दो. इंटरसेप्ट मीन्स सॉरी 5 अपॉन h है ना वो. So this is equal to 5 upon h. So that is 5 into 10 raised to 14 into 6.626 into 10 raised to minus 34. तो वर्क फंक्शन आ जाएगा ना all of you? Yes, all एक of बार स्वस्थ वाला भी कराओ ना. एक मिनट मैं करवाती हूँ. बट पहले ये समझो क्या किया है यहाँ पे. Yes, all of you, ये समझा मैंने क्या किया? यस मिस. अभी यहाँ पे इन लोग ने जो यूनिट्स है वो देखो जरा. किलो जूल में यूनिट्स है बराबर ना. दिस इज सेकेंड इनवर्स एंड दिस इज जूल सेकेंड इनवर्स. सो अभी मोल में दिस इज फॉर 1 एटम. ये जो अभी अपने को आया है ये कितना है बताओ जरा मुझे. इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है. मिस 3.3 into 10 raised to minus 19 आएगा. 3.3 into minus 19. इसका हाँ. ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 5 into 6.626 मल्टीप्लाई करने पे 3.3 मतलब 33 आता है. 33.3. ओके. 33.3 into 10 raised to minus 19. नहीं मिस, अभी अगर 33.3 लिखेंगे तो 10 raised to minus 20 हो जाएगा. ओके 20. तो ये आएगा तुम्हारा जूल में आएगा. ठीक है. बट अपने को क्या चाहिए? जूल पर मोल में चाहिए ना. तो इसीलिए इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Yes, all of you. Is this clear? ये समझा सबको? Yes. एक बार इसको मोल पूरा में अच्छे कन्वर्ट से. किया ना. हाँ मोल में कन्वर्ट किया. 198.66. ऑप्शन बी आएगा ना. into 10 raised to 3. ये आएगा मेरा जूल पर मोल ना. बट ऑप्शंस ये आएगा ये. भी है. मिस ये आ जाएगा अभी. ये आ इसको जाएगा. डिवाइड बाय 1000 कर देंगे. ए ऑप्शन. ओके ऑल ऑफ यू. सो इसको है ना अच्छे से लिखो एक बार. दिस इज समथिंग डिफरेंट वी आर डूइंग.
comparing it with straight line. So write it down properly. And I hope all are making notes very properly, है ना? Yes. Yes, miss. इतने प्रॉपरली नोट्स होने चाहिए कि तुम्हें टेस्ट के टाइम पे वापस से मुझे ये सब पूछने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. हाँ ठीक है, मीन्स यही सोल्यूशन में डाउट रहेगा तो ठीक है, बट ऐसा नहीं इधर लिखा है उधर लिखा है, टेस्ट के टाइम पे मिल नहीं रहा है रेफर करने के लिए. हाँ तुम लोग के मार्क्स आ गए क्या सबके? इस टेस्ट में भी डाउट है. हाँ वो रिपीटेड क्वेश्चंस वाले हैं ना, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए न्यूमेरिकल में. हाँ मिस, और एक न्यूमेरिकल में मेरे को 3.38 आया हाँ आंसर 4 दिया हुआ है, तो वो भी कुछ ठीक है. अभी कैसे है ना, मीन्स मैंने वो मुझे निखिल ने बताया था टेस्ट के बाद वो क्वेश्चन के लिए, तो मैंने बात किया. बट वहां पे कैसा है कि जो आंसर था ना, मीन्स वो जहां से भी क्वेश्चन लिया था तो उसका जो आंसर था वो 4 था. ठीक है, अच्छा. तो मिस जो इनपुट डाला ना ऐप में वो 4 था. तुम लोग का आंसर करेक्ट है, तुम लोग को जेई के एग्जाम में मार्क्स मिलेगा 3.78 के लिए. बट ये जो ऐप है ना वो उतना एडवांस नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हें वो रॉन्ग ही शो करेंगे. बट तुम लोग खुद कंसिडर कर लो कि तुम्हें +4 है मार्क्स, जितने भी टोटल रहेंगे उसमें. ओके मिस सर ने आज +5 अपडेट होगा ना? कर दिया. क्या क्या? सर ने Plus- आज अपडेट कर दिया, अभी मार्क्स हो वो करेक्ट हो गया, आंसर भी 3.76 आ गया है, मतलब वो रेंज में. आ गया है तो फिर हाँ. अच्छी बात है. ठीक है. और मिस वो जो मैंने आपको दूसरा डाउट पूछा था ना, वो सर ने ग्रेस मार्क वाला क्वेश्चन रखा, मतलब उसमें सबको मार्क्स अवार्ड किए जिसने अटेम्प्ट किया वैसा. ओके, तो तुम लोग को टोटल 100 ही था ना? हाँ मिस. ठीक है, तो तुम कितना हाईएस्ट कितना है? 100 है हाईएस्ट. 100 हाईएस्ट है. किसको है 100? दिया को. वाओ, गुड दिया. थैंक यू मिस. एक्चुअली वो 96 था, वो 4 मार्क का करेक्शन हुआ तो 100 हो गया. But still, if you are getting 96 also, then it is a great thing. First test में means chemistry के first test में 96 है. But इसको ऐसे ही रखो, maintain करो दिया. Means you have worked a lot on this chapter, and you Yes. have to work in same way for all chapters. डेफिनेटली. मिस हमने काइनेटिक एनर्जी को क्यों mx लिया? किसको? मिस जहाँ पे आपने आपने इक्वेशन को रीअरेंज किया ना, काइनेटिक एनर्जी को आगे लिखा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन h आगे लिखा. तो मिस हम इसको क्यों नहीं ले सकते? हमने तो क्यों तुम्हारा किया? ग्राफ देखो ना, ग्राफ में एक्स एक्सिस में क्या है? काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच है ओके ना. ओके मिस, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ देख के इक्वेशन को एडजस्ट किया. ओके मिस. मिस फिफ्थ वाला करो ना. हाँ हाँ ये लिख लिया जिगर प्रॉपरली. What marks Nikhil is getting? मिस मेरा 92 हुआ अभी. 90. उस दिन मुझे तुमने कितना बताया था? 80 में कुछ 84. 92 हुआ. Not bad Nikhil. बट देखो अभी कंपटीशन है, शी हैज गॉट 100, तो तुम्हें भी वो उतना लेने का ही कोशिश करना है नेक्स्ट चैप्टर में. यस मिस. एंड लवनीश को कितने आ रहे हैं मार्क्स? लवनीश 75.
This chapter is easy chapter, classification. बट लास्ट ईयर जब ये चैप्टर का टेस्ट हुआ था तो वो उन लोग को 100 में से 100 नहीं मिला था मार्क्स. हो गया ना, सबका लिख लिया? तैतिल को कितने मार्क्स आए? तैतिल 87 मिस. 87. कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 4 का तैतिल का डाउट है क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 मार्क करो. 6 हो गया सॉल्व. 7th क्वेश्चन. व्हेन अ सर्टेन मेटल, अभी ये जस्ट किया था हम लोग ने, वैसा ही क्वेश्चन है ये. यस तैतिल, अभी जस्ट किया था ना हम लोग ने, वो सेम वैसा ही क्वेश्चन है. बस मैंने थी कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया रहेगा. मैंने वो मेथड से ट्राई किया बट आंसर भी आ रहा था. सी तुम्हें ऐसा आना चाहिए. मैं सब्स्टिट्यूशन बता देती हूँ, बाकी मेथड तो सेम है. V2 is यही किया है सब्स्टिट्यूट. बस इसको ही उल्टा ले लिया था मैंने खुद से. हाँ, तो वो ये बराबर होना, तुम्हें समझ में आना चाहिए व्हाट इज 2 एंड व्हाट इज 1. काइनेटिक एनर्जी 2 is 2 times काइनेटिक एनर्जी 1. सो उसके अकॉर्डिंग ही करना है. सो इसको लिख लो और फिर बाद में सॉल्व करना. ओके बस. लिख लिया बस. लवनीश के भी डाउट सॉल्व हो गया. लेरॉन का सॉल्व हो गया. समर मिस का मिस सेकंड वाला मेरे को आ गया. सेकंड और 7th आ गया. बस फर्स्ट करना ना. थर्ड फर्स्ट. भी आ गया. मिस हाँ, मिस वो सेकंड वाले में हमारे मॉड्यूल में पीछे नेगेटिव वैल्यू दिया है, मतलब बी ऑप्शन दिया है शायद, लेकिन मेरे को पॉजिटिव वैल्यू आया. मेरे को भी पॉजिटिव आया था. एक मिनट है, मैं चेक करती हूँ. पहले 1 कर लो. सो व्हाट इज गिवन? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड electron. So it is so easy, Samartha. Half mv square, that is equal to h nu minus h nu naught. So can you calculate now, Samartha? Yes, miss. What is nu? Tell me. Miss, only the value of h. Okay, understood, miss. नहीं, मुझे न्यू बताओ कितना है. अच्छा मिस, h का वैल्यू मतलब? हाँ, वैल्यूज बताओ मुझे, क्या सब. मिस h का वैल्यू तो 6.626 into 10 raised to 34 होगा ना, -34. ओके. और मिस और v का वैल्यू हो जाएगा 1 into 10 raised to 15 और v नॉट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 7 into 10 raised to 14. ओके. So this is clear ना? Yes, miss.
फिर कौन सा सेकेंड क्वेश्चन? तो तुम लोग क्या बोल रहे हो? एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बोला है ना, नेगेटिव में आया तुम्हारा आंसर। नहीं मिस, हमारा पॉजिटिव में आया और पीछे नेगेटिव में। हाँ तो ये नेगेटिव में ही आ रहा है इसका आंसर। कैसे मिस? तुम लोग जरा सोल्यूशन भेजो, कोई एक जन जो तुमने सॉल्व किया है। I'll just check what you have done. निखिल भेजो, सोल्यूशन भेजो। पर तुम्हें 10 में आंसर आ रहा है। अच्छा, बट बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव में होता है, इसीलिए वो नेगेटिव आएगा, बाकी किया बराबर है। Binding energy is always in negative. Energy is evolved, so that's why it will be negative. Okay. नहीं मिस, एक बार वापस बताना दीजिए। Binding energy is the energy which is see. Binding energy is equal to threshold energy. So तुम लोग ने क्या निकाला? थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाला ना, वर्क फंक्शन निकाला ना, सो दैट इज वो नेगेटिव होता है। तुम्हारा साइन बाइंडिंग एनर्जी का हमेशा नेगेटिव आएगा। अब ये बाइंडिंग एनर्जी सबसे पहले ये होता क्या है? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? तुम्हारा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू गेट बाउंडेड विथ न्यूक्लियस इज बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर निखिल? तो तुम्हारा जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगा उसका साइन और बाइंडिंग एनर्जी का साइन हमेशा अपोजिट रहेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारा हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है? ओके मिस। इट इज नेगेटिव थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेगेटिव थ्रेशोल्ड एनर्जी कहती नहीं, प्रथम कितने मार्क्स आए? प्रथम, how much marks you got? $62. गुड। एंड राजीव को कितना मार्क्स आया? 75. ओके, गुड। और कुछ है इसमें क्वेश्चंस? जिगर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? जिगर मिस फिफ्थ वाला। फिफ्थ वन। Fifth one. The work function phi for some metal is listed below. The number of metal which will show photoelectric effect when light of 300 nanometer wavelength falls on the metal is. So यहाँ पे तुम्हें टेबल दिया हुआ है।
So now you find out here work function. Yes, Nikhil, you correct है तुम्हारा. So what you have to do, you have to find out the work function. Phi is equal to h nu naught. और तुम्हें यहाँ पे वेवलेंथ दिया है, so it will be hc upon. So लैम्बडा कितना आता है? फाइंड करो. Yes, Shigar, find it out fast, and you have to first, you will be getting first answer in joules, and then you have to convert it into electrovolt. Substitute करो values. हाँ मिस एक मिनट. 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वो नैनोमीटर में है, नैनोमीटर से तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना है. नहीं मिस आंसर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है. और मैं 7th वाला भी करना है. So फिर फाइनली तुम्हारा आंसर क्या मिस रहेगा? 10 raised to -9 ना. हाँ, मीन्स वो जूल्स में आएगा ना. तुम्हें जो आंसर आया रहेगा वो जूल्स में आया रहेगा. देन हाँ. उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करो, सो यू विल गेट 4.14 इलेक्ट्रोवोल्ट. सो अभी 4.14 इज द मिनिमम एनर्जी. तो ऐसे कितने सारे हैं मेटल्स? Li पोटेशियम 5. हाँ, 4 है. 5 है मिस, 5 है. 4 ना. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. Yes 4. मीन्स तुम्हारा एनर्जी जो आ रहा है वो 4 से कम होना चाहिए. अगर 4.14 से एनर्जी अगर ज्यादा है तो वो रॉन्ग आंसर से. ओके मिस. मीन्स अगर एनर्जी तुम्हारा 4.14 से अगर कम होगा तो ही फोटॉन्स क्या होंगे? फॉल होंगे. अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो फोटॉन्स फॉल नहीं होंगे. देन इट्स हाँ डन मिस. ना. यस मिस डन. सो सारे मैंने ही किए क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 4 के. सो होमवर्क तुम लोग को मैं देती हूँ और फिर तुम लोग मुझे से सॉल्व करवाते हो यहाँ पे. आर्यन का डाउट है सेकेंड वन. सेकेंड हो गया क्लियर. ओके. ये सबका हो गया ना डाउट्स क्लियर? अगर किसी का अभी भी बाकी है तो मुझे बताओ. इस जो पीडीएफ भेजा था उसका करेक्ट सॉल्यूशन भेजोगे, कुछ एक्सप्लेनेशन भी दोगे उसके बाद, अब कुछ समझे. मैं सॉल्यूशन भेजती हूँ ना, तुम लोग समझने की कोशिश करो. नहीं आता है समझ में तो मुझे पूछो वापस से. ठीक है मिस. मैं भेजती हूँ, अभी भेजती हूँ, so that तुम लोग को पता चलेगा. तो मुझे लेक्चर में ही पूछ लेना. कितने क्वेश्चंस थे उसमें? 43. कितने? 40 ना. 43. 43 क्वेश्चंस थे. मिस एक इलस्ट्रेशन 56 में भी डाउट है. हाँ, एक मिनट, अभी मैं इसका ना तुम लोग को फोटोज भेज देती हूँ.
मिस अभी क्या अभी क्या करना है? होमवर्क किया है तुमने जिगर? हाँ जिगर, होमवर्क किया है? हाँ मिस। यस मिस। पीडीएफ पीडीएफ दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए, किया था? नहीं मिस। क्यों मिस नहीं आया इसीलिए। नहीं आया? ऐसे हो ही नहीं सकता है जिगर। इसका मतलब तुम्हें लेक्चर भी नहीं समझ में आता है फिर। मिस वो थोड़ा नहीं समझ में आया था, फिर नहीं आया। फिर थोड़ा नहीं आया था तो थोड़ा नहीं करना चाहिए था ना, बाकी सब तो करना चाहिए था। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें आएगा ही नहीं एक भी क्वेश्चन करने के लिए। यस, और भी ऐसे कोई है जिगर के साथ में जिसको एक भी क्वेश्चंस नहीं करने आए? यस, एनीवन? तो मुझे ज्योति मैम को बताना पड़ेगा जिगर ने पीडीएफ का होमवर्क किया नहीं है। नोट डाउन करके मिस रिकॉर्ड वो में। जो मैम ने फोन किया था मम्मी। किसके लिए? फिर उसके बाद क्या हुआ? एक दिन तुमने होमवर्क किया फिर वही वापस से? अरे नहीं, वो आज ही फोन किया। फिर भी नहीं किया है होमवर्क? अरे मिस नहीं आया तो भी। ऐसा हो नहीं सकता है जिगर, नहीं आएगा। अगर तुम एकदम बोलते हैं ना कंसंट्रेशन के साथ में, तुम लेक्चर में हो, सब समझ रहे हो, अगर इधर मैं पढ़ा रही हूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा, तभी के तभी पूछो। ये सब फॉलो करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं आया रहेगा सॉल्व करने के लिए। अभी देखो ना, तुम्हारे बैच में ऐसा कोई भी नहीं है जिस जो ये बोले कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया सॉल्व करने के लिए। हाँ मिस, लेकिन अभी नहीं आया तो अभी मैं क्या करूँ? नो, दिस इज नॉट द रीजन। इतना वो पहले वाले लेक्चर के किया ही रिकॉर्डिंग। नहीं, ये रीजन है, तुमने किया ही नहीं जिगर, अरे ये है। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस कि तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं आया करने के लिए। अगर यहाँ पे कितने जन है? 25 स्टूडेंट्स थे, अगर 25 में से अगर 10 जन भी बोलते हैं मुझे कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया करने के लिए, तो मैं ये मान लूंगी कि हाँ सच में मैं कुछ अलग करवा रही हूँ और तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं मिस, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भूल गया था इसीलिए। हाँ तो मतलब मैं वो क्या मेथड है वो भूल गया था, इसीलिए नहीं आया। तुम होमवर्क ही भूल गए थे कि ये होमवर्क था करना? अरे नहीं। ये बताओ। नो जिगर, नो। आई नीड टू टॉक विथ नीरव सर रिगार्डिंग यू, क्योंकि ऐसे ही होगा तो तुम ये बैच में सरवाइव नहीं कर सकते हो जिगर। यू विल बी शिफ्टेड टू सीईटी बैच। मिस मैं दोनों बैच में। हाँ वही तो, तुम्हें परमानेंटली सिर्फ वही बैच में रखा जाएगा, ये बैच में नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर तुम्हें जम नहीं रहा है दोनों भी बैच का होमवर्क, पढ़ाई, अटेंडेंस, so it's better you be in one batch only. I need to talk with Neerav sir regarding this. अरे नहीं मिस, वो एक ही बार कुछ नहीं आया, वरना मैं कर दूंगा। और तुम बैच में भी, तुम सुबह के भी लेक्चर में फिर एक लास्ट में चले गए थे, तुम लेक्चर में नहीं थे। वो मुझे मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लेके रखे अटेंडेंस के। कितने बजे से तुम नहीं थे उसके सारे मेरे पास में स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं अटेंडेंस के। Yes, all of you. So you check your answers also. और सब लोग अपने अपने आंसर्स चेक करो और मुझे बताओ कि कितने करेक्ट आ रहे हैं तुम लोग को। 43 में से कितने करेक्ट आ रहे हैं?
मिस हाँ वो शायद लास्ट के 5 तो अनसर्टेनिटी वाले प्रिंसिपल के क्वेश्चन है। हाँ, तो हाँ, ठीक है, हो सकता है कि इसमें 43 में से कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हो, तो इट्स ओके, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस तो करवाए हुए ही है ना। हाँ मिस। चलो ऑल ऑफ यू, सो बाद में मुझे उसके पूछ लेना क्वेश्चन जो भी आपको डाउट में है। निखिल कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है? 56। हाँ, वो 56 उस दिन वाला क्वेश्चन ना। हाँ मिस वही है। उसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है? नहीं मिस। So all of you tell me which concept application exercise 1 is done? Yes. 2, Yes. 3, Yes. 4, Yes. 5, Yes. 6, Yes. 7, No. 7, okay, 7 is not done. It's on D Broglie. फिर 8 भी नहीं हुआ है ना? 7 के बाद नहीं दिया होगा। ठीक है। मिस लास्ट लेक्चर आप डी ब्रोगली का एंड के 10 मिनट में चालू किए थे। हाँ ठीक है, वो उसका इक्वेशन हो गया था ना डी ब्रोगली का, सिर्फ उसके क्वेश्चन सॉल्व हाँ। करने को। ओके हाँ, कुछ पूछना है ये क्वेश्चंस में से 1 to 43 कुछ पूछना है? हाँ मिस। हाँ बोलो। मिस 21st वाला नहीं आया। 21st। हाँ मिस मेरे को भी इसमें ही डाउट है। हाँ, ये बाकी है अपना करना। 21st एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। और कुछ? Yes, all of you, anything else? No, na? 32 वाला भी। 32। और जो लास्ट वाले जो है वो तो उसके हाइसेनबर्ग के प्रॉब्लम्स है, तो वो तो करा नहीं, तो वो मैंने स्किप कर दिया। हाँ, so you can skip it. हाँ तो मिस इतना ही डाउट है।
32 है ना, पर डाउट में है। हाँ है मिस 32 है। तो 32 का क्वेश्चन क्या है? Electron travel with a velocity of v meter per second. For a proton to have same de Broglie's wavelength, the velocity will be approx. De Broglie's equation. So if you have a lambda of electron, mass of electron, velocity of electron, wavelength of protons, mass of proton, wavelength of proton. इन लोग ने क्या बोला है? डी ब्रोगलीज वेवलेंथ सेम होना चाहिए ना। सो ये है ना। सो ये कैंसिल हो गया। So mass of electron, velocity of electron is v, उधर दिया है क्वेश्चन में। So velocity of proton, mass of electron, mass of proton is 1840 times the mass of electron. Okay, is this clear all of you? Start से देखना है, write it down if you want. Understand each and every step. If you are not understanding, ask me. मिस नेक्स्ट पे जाओ ना। ओके मिस। Next is 35 question. So 35 question में क्या बोला है? Helium atom at 300 Kelvin is moving with a velocity of 2.4 into 10 raised to 2 meter per second. The de Broglie wavelength is, so lambda calculate करना है। सो h का वैल्यू अपने को मालूम है, वेलोसिटी मालूम है। बट हीलियम का मास नहीं मालूम है ना अपने को ग्राम्स में, वो दिया है यू में दिया है, हीलियम इज 4u। सो कैन यू कैलकुलेट इट इन kg और ग्राम? यस, ऑल ऑफ यू kg में कैलकुलेट कर सकते हो, पहले ग्राम में। 1u इज हाउ मच?
बराबर ना all of you? 1 U is 1.66 into 10 raised to minus 24 grams या फिर minus 27 kilograms. Yes, all of you, बोलो कुछ. ये correct है? हाँ मिस. So 4U is how much? How much? 1 minute. 1.66 into 4 into 10 raised to minus 27. Now substitute lambda. So you will get value of lambda. Okay. Lavnish, is this clear? So now all of you see illustration 70. An electron beam can undergo diffraction by crystals. Though what potential should a beam of electron be accelerated so that its wavelength becomes equal to 1.54? So all of you, what is to be calculated? Velocity, na? Velocity calculate करना है और अपने को wavelength दिया है. So can we calculate, all of you? Yes, all of you solve करो. If you are not getting it, you ask me. Solve it fast. You have 2 minutes time. Solve it fast.
क्या हुआ? 3 मिनट्स हो गया, फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। कुछ कर रहे हो कि बस ऐसे ही? मिस नहीं आया आंसर। Yes, all of you, this is de Broglie's equation. यस मिस। So now potential to which beam of electron is accelerated, that is EV is equal to half mv square, that is the kinetic energy. Okay, अभी हम लोग क्या करेंगे? We'll substitute this here. So equation क्या आएगा? Half mass of electron h square lambda square. Okay, accelerated यानी velocity of electron by which it is accelerated. This is clear all of you? यस मिस। ये इक्वेशन सबको समझ में आया? मिस हाँ, वो ईवी क्या है, मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला है? वेलोसिटी पोटेंशियल, तुम्हारा कितना पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है मींस व्हाट, देयर विल बी अ काइनेटिक एनर्जी ना। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन by which it is getting accelerated. Okay, so ये यहाँ पे सिर्फ means we can directly write here velocity. What is the velocity of electron which is accelerated? That is equal to kinetic energy. Yes, then वो ऊपर के value substitute किया and then you have got this final value. फिर अभी substitute करोगे ये सारी चीजें. You know ना what is mass of electron? It should be in kg, s should be in meter, lambda should be in meter. कितना दिया है lambda? 1.54 angstrom दिया है, इसको कन्वर्ट करो मीटर में and you find out the velocity. Yes, this is clear, Nikhil? हाँ मिस समझा। Yes, all of you fast. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें ऑल ऑफ यू. 71 क्वेश्चन. ब्रेक 71 इज होमवर्क. ये खत्म करते हैं इलस्ट्रेशन एंड देन यू टेक ब्रेक. 71 इज होमवर्क. 72 देखो क्या बोला है. इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड with kinetic energy of 2.5 electrovolts. What is the associated de Broglie's wavelength?
ओके, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। So now let us do one small derivation for wavelength and kinetic energy. Kinetic energy is half mv square मिस हेडिंग क्या दे? उसके अंदर ही कर रहे हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन विथ काइनेटिक एनर्जी, multiplying mass on both side Yes, all of you, is this clear? मिस 1 minute. Note it down. Done? मिस 1 minute. Done, miss. So now read again 72 question. काइनेटिक एनर्जी दिया है और वेवलेंथ बोल रहे हैं ना कैलकुलेट करने के लिए. So lambda is what? h upon root of 2 into Kinetic. kinetic energy into mass. Yes. So you can calculate now. तुम लोग को पता है h कितना है. काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोवोल्ट से कन्वर्ट करो. अभी ऐसा इधर क्वेश्चन में इन लोग ने जो फाइंड किया है वो मीटर सेंटीमीटर में फाइंड किया है, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है. यू कैलकुलेट वेवलेंथ इन सेंटीमीटर बोला है क्या क्वेश्चन में? No. नहीं मिस. कैन कैलकुलेट इट इन मीटर आल्सो. सो कन्वर्ट Okay. इलेक्ट्रोवोल्ट्स इनटू जूल्स, देन यू टेक मिस मास. सुन, मतलब अगर नहीं दिया रहता तो डिफॉल्ट क्या कैलकुलेट करना रहता है, मीटर या सेंटीमीटर? एमकेएस. हैं? एमकेएस में होना चाहिए. एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड्स.
कितना आया आंसर ऑल ऑफ यू? आज आएगा ना आंसर? So निखिल को आंसर आया 7.73, but what meter? Yes, Nikhil, it is meter. बोलो. Okay. ठीक है, all of you take break. Answer is 7.73 meters. You take break and then 15 minutes break. मिस and खाली 7.73 into 10⁻⁻⁶। तुम्हें क्या आया? निखिल को 7.73 आया सिर्फ। मिस मैंने आगे नहीं किया। बट निखिल कैसे आएगा 7.73? इसका एक्चुअल आंसर कितना है? 7.7 into 10⁻⁻⁻8। -8 है। हाँ मिस। तो पावर क्या है? मिस मिस -6 होएगा ना, 10⁻⁻6। मैंने चैट में लिखा नहीं। हाँ, so it is 7.73 into 10⁻⁻6 meters. हाँ मिस। ठीक है, so now take break and join after 15 minutes. Okay, चलो bye.